ابھی یہ پینڈیمک ختم ہو تو ہم انشاءاللہ ان کو صحت کارڈ بھی دیں گے اوورسیز پاکستانیز کو. اور میرے نیچے ایک اور ادارہ ہے EUBI آپ کی اولڈ ایج کنٹریبیوشن ہوتی ہے, پینشن ہوتی ہے. میرا انشاءاللہ اس 5 سال کے ٹرم میں میرا اگر ایک گول ہے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں گول ہوگا پاکستان کے لیے, کہ ہم اپنی انفارمل امپلائمنٹ کو فارمل امپلائمنٹ میں لے کے آئیں. اور یہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو انفارمل جو آپ کا بھٹے والا ہو گیا, آپ کے ملازم ہو گئے گھر میں, ڈرائیور ہو گیا, عورتیں جو کام کرتی ہیں گھروں میں بھی کھیتوں میں بھی, ان کو بھی, پریس کو بھی, فری لانس پریس کو بھی, کوئی کمپیوٹر انجینئر ہو جو انڈیویجولی کام کر رہا ہو, ان سب کو پینشن ملنے کا حق ہونا چاہیے. جب ایک بندہ 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو وہیں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ میں 60 کو ہوں گا تو ریٹائرمنٹ آ جائے گی, میں کیسے دوں. EUBI میں صرف یا سرکاری ملازم کو پینشن ملتی ہے یا جو انڈسٹری فارمل اکانومی. اب ہم EUBI کو ڈیجیٹلائز کریں, جو اس کا RFP فلوٹ ہو گیا ہے, کھل بھی جائے گا اس ہفتے, اور ہم نے ایک آرڈیننس اور ایک لا پاس کر رہے ہیں کہ ہم انفارمل اکانومی کو بھی حق دیں کہ اپنی کنٹریبیوشن وہ انڈیویجولی خود دے سکے آن لائن, اور ان کو بھی پینشن ملے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کچھ 50 ملین کی آبادی کو پینشن ملنے کا حق ہوگا. اور تب جو خان صاحب کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی جو بات کرتے ہیں, جب پینشن ہر انسان کو ملے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کیسے لوگ کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی کوالٹی بہتر ہوگی. اور اس کے اندر ہی ہم پاس کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی انکلوڈ کیا جائے. تو جب ہمارا لیبر باہر جائے گا, کام کر رہا ہوگا, وہ کنٹریبیوشن دے سکے گا اور اپنی پینشن کی کنٹریبیوشن دے سکے گا, اور 60 کے بعد ان کو اپنی پینشن بھی ملے گی جیسے باقی EUBI پینشنرس کو ملتی. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ انشاءاللہ ہم سے ہو گیا تو ایک بہت جو ہوگا اللہ کرے. جب ہم نے شروع کیا تھا EUBI کی پینشن 5250 پہ تھی, آج ہم اس کو لے آئے ہیں 8500 پہ. گول میرا یہ ہے کہ اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے, اگلی ٹرم شروع ہونے سے پہلے ہم اس کو 15000 تک لے جائیں جو منیمم ویج ہے. تو پینشن اور منیمم ویج انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ برابر, اور اگر ہم یہ اچیو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بہت زیادہ آسان ہے. عبدالرحمان رضا, دنیا نیوز سے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دبئی کنسلیٹ کے اندر جو منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے کوئی بھی یہاں پہ آفیسر تعینات نہیں ہے, تو یہاں پہ لوکل جو ہے وہ بھرتی کی گئی ہے. ایک تو وہ کس وجہ سے نہیں ہے, وہ یہاں پہ ہونے چاہیے تاکہ اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمیونٹی کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو آؤٹ پاس یہاں سے جاری ہوتا تھا, ٹیمپریری پاسپورٹ, جو جن کو جیلوں میں یا یہاں پہ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے, ان کے لیے بھی فیس بڑھا دی گئی ہے. اور آخری بات کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا گاڑیوں کی اسکیم کے بارے میں, کیونکہ وہ چیز پاکستانی بڑے خوش ہوئے تھے, اس سے پہلے کوئی ایسی اسکیم نہیں تھی ان کے لیے, تو اس پالیسی کا کیا ہوا؟ آؤٹ پاس کی فیس کا فیس تو 10 درہم ہے, وہ بڑی نہیں ہے, وہی ہے آؤٹ پاس کی فیس. اور جو ڈیسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں ان کو فری دے رہے ہیں ہم, دن میں 50-60 آؤٹ پاس ڈیسٹیٹیوٹ کو دیتے ہیں, اور جیل میں بھی جاتے ہیں, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جو خود والنٹریلی جاتا ہے, جیسے بچہ پیدا ہو گیا یا وہ ہے, اس کے 10 درہم فیس ہے, وہ نہ بڑی ہے کوئی فیس ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. میں آپ کو انٹیریئر میں ہمارے آفسرز ہیں سر, 2 ہیں آفسرز جو ڈیل کرتے ہیں پاسپورٹ اور آؤٹ پاس, اور نادرا بھی انٹیریئر کے انڈر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ جو ہمارے CWAs ہیں وہ بھی ہم انکریز کر رہے ہیں UAE میں. تو پہلے 3 تھے, اب ہم اس کو 4 پہ لے کے جا رہے ہیں کہ زیادہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچ چیزوں کے زیادہ کام ہو سکے. ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسا ہے, تو یہ بھی ایک انکریز ہے. قطر میں 1 تھا, وہ ہم نے 2 کر دیے ہیں. سعودی عربی میں 4 تھے, ہم نے 6 کر دیے ہیں. تو یہ ہم بہتری کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے ان کی ٹیسٹنگ, انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں, وہ بالکل ایگزمپری ہیں کمپیئر ٹو بیفور, جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا. اب ہم نے بالکل ایک میرٹ پہ بھی اور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب انٹرویو کر کے ہم نے. جی, رانا ارشد امارات نیوز سے. ذوالفقار بھائی صاحب, پوچھنا یہ تھا کہ PI کے اثاثوں کی فروخت کے حوالے سے بڑی بات چیت ہوتی رہی, روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت کے حوالے سے بات بھی ہوئی, آپ کا ذکر خیر بھی اس میں آیا. اب تو کورٹ کی رولنگ بھی آ گئی کہ وہ معاملات ساتھ رہیں گے. تو سر پوچھنا یہ تھا کہ PI کو سروائیو کرنے کے لیے یہ اثاثوں کی فروخت ضروری ہے, یا مطلب آپ نے قوم کو پوری سکتی کیسے آپ دیکھیں, اس پہ ظاہری بات ہے میرے پہ بھی کافی تنقید ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات.
देखिए, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, ना एविएशन मिनिस्टर सरवर खान साहब का, ना मेरा, ना किसी और का रोज़वेल्ट को बेचने का बिल्कुल कोई कतई इरादा नहीं है। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये बनाई हुई बात थी, खाली अपोजिशन ने इसको जोर दिया हुआ था, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं। ये ज़रूर है कि जब एक एयरलाइन कोई भी असासा खरीदता है, उसका मकसद ये होता है कि वो एसेट उसको वापस रिटर्न ऐसे दें कि उसकी एयरलाइन उठे। PIA होटल इसलिए तो नहीं खरीदता कि वो एक होटेलियर बनने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होती है, और उस इन्वेस्टमेंट तब ही होती है कि उसकी कोई रिटर्न है। जब एक एसेट की रिटर्न नहीं आती, वो लाइबिलिटी बन जाती है, एसेट नहीं रहता। तो हमारा मकसद ये था कि एक रोज़वेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन इलाके में सिचुएटेड है, आपके पास एक रोज़वेल्ट न्यू ऑरलीन्स है, रोज़वेल्ट लॉस एंजलिस हैं, वो 4 से 5 स्टार के होटल्स बन गए हैं, प्रॉफिट में है। गूगल में इनकी रेटिंग देखें, 4.5 स्टार्स उनको मिले हुए हैं, और हमारा न्यूयॉर्क का रोज़वेल्ट गिरता जा रहा है। 2.5 की इसकी रेटिंग है, कोई 2 है, कोई 3 है। रोज़वेल्ट ने पिछले साल $1.5 मिलियन का नुकसान किया। तो मतलब है कि जब लोग तनकीद करते हैं, क्या वो आके उसका नुकसान भरेंगे? तो इसको बात ये कि आप जब एक घर लेते हैं, आप चाहते हैं कि इस घर का आपने F6 में इस्लामाबाद में घर लिए, उसका रेंट होना चाहिए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, आपको मिल रहे हैं 2 लाख रुपए। आपको ये भी पूछने का हक नहीं है कि मेरे साथ वाले घर को 10 लाख रुपया मिल रहा है, मुझे क्यों 2 लाख मिल रहा है? क्या मेरे घर में कोई कमी पेशी है कि मैं घर को रेनोवेट करूं, ठीक करूं, कि मुझे भी 10 लाख रुपए मिले? तो हम सिर्फ इस लाइन पे सोच रहे हैं कि इसको क्या बेहतर कर सकते हैं कि हमें कोई रिटर्न मिले, कि ये एसेट ही रहेगा, लाइबिलिटी ना बने हमारी। PIA भी नुकसान में जा रहा है, एसेट भी हमारे रोज़वेल्ट भी नुकसान में जा रहा है, तो कौन भरेगा इसको? तो इसकी रीजनरेशन की बात हमने की थी कि इसको कैसे एक बेहतर असासा बना सकते। सैयद मुदस्सिर 92 न्यूज़ से मेरा सवाल ये है, बल्कि पहले भी सवाल हुआ कि गाड़ियों के हवाले से यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज में जिनकी स्पेशल गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, और स्पेशली बड़ी हैवी मशीनरी भी लोगों की यहाँ पे फंसी हुई है, और अब क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे काम बंद हो गया, और वो लोगों की जो मशीनरी है वो यहाँ पे खराब हो रही है, तो बड़ी हैवी मतलब मिलियंस में वो असासे हैं यहाँ पे। क्या कोई ऐसा तरतीब हो सके जो टैक्स के हवाले से वहाँ पे छूट हो, या कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये यहाँ भी है, सऊदी में भी ये मसला है, और कतर में भी ख़ास तौर में ये मसला है। मैंने रज़ाक दाऊद को एक प्रपोज़ल दी है, मैं नहीं कह सकता कि वो अभी तक एक्सेप्ट हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वापस जाके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक 1 टाइम वेवर की मैंने पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कि हम हैवी मशीनरी जो हमारे पाकिस्तानियों ने जिनने इन्वेस्टमेंट की है, वो मैं कतर भी किया था तो मुझे आई थी कंप्लेंट, और मैंने देखे थे कि उनको कीमत ही नहीं मिल रही उस मशीनरी की। अगर $1 लाख की ली हुई हो, उनको मुश्किल से $20,000 भी नहीं मिल रहे उसके लिए। तो हम ये सोच रहे हैं करने की, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि एक 1 टाइम वेवर 3 महीने का हम विंडो दे दें कि जिसके पास भी प्रीवियसली ओन्ड मशीनरी, तो पहले से जिसके पास हो मशीनरी दुबई, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर में, उनको मौका मिले कि वो टैक्स फ्री पाकिस्तान लें, और फिर पाकिस्तान अगर वो बेचना चाहें वो वहाँ बेच सकते हैं कि उनको बेहतर कीमत मिले, कि उनका नुकसान ज़्यादा ना हो। मुझे बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का, तो इस पर मैंने लिखा हुआ एक पूरी मैंने एक प्रपोजल दी हुई है रज़ाक दाऊद साहब को। इंशाल्लाह अगले 2-3 बजट आ गया था बीच में, लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में एक ये होगा। जो गाड़ी की बात थी, गाड़ी का हमने इसलिए थोड़ा सा होल्ड पे किया था सर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक ओवरऑल PM चाह रहे हैं कि एक डिजिटल बैंक बने पाकिस्तान को ओवरसीज़ का। उसमें जब आप बैंकिंग करेंगे तो उसमें कई ऐसी इंसेंटिव्स होगी, जैसे गाड़ी, खासतौर पे जो गाड़ी का मैंने बोला था वो इलेक्ट्रिक कार थी, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक कार हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि कार भी ड्यूटी फ्री इलेक्ट्रिक जो हो वैसे ही ड्यूटी फ्री सबकी हो जाए, सिर्फ ओवरसीज़ के लिए नहीं। तो एक पुश था, अब देखते हैं कि वहाँ साहब उसके साथ कहाँ पहुँचे। लेकिन जब हम ये ओवरसीज़ अकाउंट्स, डिजिटल अकाउंट्स लॉन्च करेंगे, इसके हर बैंक अपना अपना करेगा। हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, उसमें रज़ाक दाऊद साहब भी है, डॉक्टर रशीद हुसैन साहब भी है, गवर्नर स्टेट बैंक भी है, और मैं भी हूँ, और सारे मालिक जो हैं CEOs हैं प्राइवेट बैंक्स के, वो भी हैं। तो हमने काफ़ी इंसेंटिव्स इसमें निकाली हुई हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं।
पी एम से अप्रूव होगी, कुछ 65 इंसेंटिव्स हमने दिए हैं कि जहाँ आपको पैसे भेजने में बेहतरी होगी, कम खर्चा होगा और क्या क्या सहूलतें आप लोगों को मिलेंगी। तो बस हमें थोड़ा सा और मौका दें, शायद महीना और होगा कि इसकी पूरी एक बहुत ज़बरदस्त लॉन्च टीम सब होता है। मेरा नाम आसमा रिजाइन है, मैं अरब न्यूज़ के साथ हूँ। कोविड की वजह से जाहिर है बहुत सारे लोग आपने जिक्र किया कि चले गए हैं, तो अब यूएई ने वीज़ाज ओपन कर दिए हैं फॉर टूरिस्ट, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तानीज़ के लिए उन्होंने वीज़ाज अभी तक ओपन नहीं किए। बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं, स्पेशली जो बैचलर्स हैं विदाउट फैमिली, जिनकी जॉब्स नहीं है यहाँ पे, विजिट वीज़ाज एंड अदर काइंड ऑफ वीज़ाज आर नॉट गेट ओपन। तो इसके बारे में क्या करें? तो देखिए, जिनकी रेजिडेंसी हो, जिनका काम हो, उनको तो फिर भी एग्जम्पशंस मिल रही है, वो आ सकते हैं। जो टूरिस्ट वीज़ाज हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बंद हुए हुए हैं, अभी तक खोले नहीं है। लेकिन अभी आज जो हमारी मीटिंग हुई थी उनने हमें काफ़ी वो किया था कि पहली अगस्त से वो इंशाल्लाह टूरिज़्म ये बिल्कुल खोल रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। वो उन्होंने कई हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे, ऑल्दो पाकिस्तान बहुत बेहतर कर रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, सबसे बेस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कोरोना में पीएम की नेविगेशन की वजह से। लेकिन अगस्त 1 से इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया भी है और भी है। 66 को अलाउड है, उसमें 130 को अलाउड नहीं है। पाकिस्तान कोविड तो नीचे चला गया ना, नीचे जा रहा है। अब ईद के बाद आप इंशाल्लाह इसमें बेहतरी देखेंगे। जैसे कि हमने भी ईद से पहले कोशिश की है कि कुछ ज़्यादा हम एक्स्ट्रावेगेंट ना करें, तो यहाँ भी यही है कि ईद से पहले कि ज़्यादा ना हो जाए, जो चीज़ बैठ रही है उसको पहले बैठने दे तो इंशाल्लाह अगस्त बाद जी सर जी देखिए, सॉरी लास्ट बिट के वो आपको पता है कि स्पेशली मार्च और अप्रैल के जो फीस थी वो गवर्नमेंट ने, और जो वीज़ास थे वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए 17 अगस्त तक। तो प्लीज़ ये अवेल करें अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने, आपके पास 17 अगस्त तक टाइम है। जो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं विदाउट एनी टाइम। जो मार्च अप्रैल का भी हो गया, आ गया यूएई की तरफ से कभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अतिया फ्रॉम 24 न्यूज़ सर। मेरा पहला सवाल तो सर ये है कि हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि ओवरसीज आपकी जो गवर्नमेंट आई उसके लिए जो सपोर्ट थी वो आप सबके सामने थी, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता रहा। लेकिन वो 2 साल का अर्सा गुजरा, उसके अंदर काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आई, स्पेशली जो कोविड-19 के दौरान जो PIA गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, मैंने कैबिनेट को भी और सेनेट को भी एक रिपैट्रिएशन की पूरी ब्रीफिंग दी थी, और उसमें जो इश्यूज़ का जो स्लाइड था उसमें PIA के टिकटिंग का मामला भी मैंने भी रेज़ किया। मैं आपसे बिल्कुल तावन करता हूँ इसलिए कि हमें बड़ी मुश्किलात आई हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात है PIA की। कभी टिकट ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं, कभी हमें प्राइस आती थी, बहुत कम करा देते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अरशद मलिक साहब है CEO PIA के, उन्होंने खुद पर्सनली बड़ी मेहनत की है। लेकिन आपको पता है कि PIA इदारा है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, देखें मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो करप्शन होती है ना जी, करप्शन ये नहीं होती कि आप किक बैक लेते हैं सर कि एक प्रोजेक्ट किया, उसका कमीशन लिया और वापस नहीं। जो असल करप्शन होती है वो ये होती है कि जब एक इदारा डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अंदर से। अगर मुझे अपनी मिनिस्ट्री में करप्शन करनी हो तो मुझे पहले एक कॉम्प्रोमाइज सेक्रेटरी चाहिए होगा, उसके नीचे 2-3 कॉम्प्रोमाइज किस्म के जॉइंट सेक्रेटरीज चाहिए होंगे, उसके नीचे कॉम्प्रोमाइज किस्म का एक MD या DGs और स्टाफ ऑफिसर्स वगैरह चाहिए होंगे। तो होगा ये कि मैं तो अपनी करप्शन करके मिनिस्टर चला जाता, लेकिन वो पूरा इदारा नीचे से तबाह हो जाता, पूरा इदारा। और PIA में भी यही हुआ, हर साल बाद यही होता गया है। तो वो पूरा इदारा गिर गया। इंग्लैंड में पिछले साल इलेक्शन से पहले मैं इंग्लैंड गया था, लीडरशिप ही नहीं थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तब तक इलेक्ट नहीं हुआ। एक बगैर लीडरशिप के मुल्क वैसे ही चल रहा था जैसे कि लीडरशिप हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। जब आप इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स को मार देते हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, आप फिर उसकी नाकामी उसको देखते हैं। और ये पैंडेमिक कोरोना जितनी भी उसकी मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कई चीज़ें लोगों के सामने वाज़े हो गई।
हेल्थ सिस्टम्स क्या थे हमारे पाकिस्तान में पिछले 20 साल से क्या हुआ है कि कोरोना सामने आया और हमने देखा था, हमने तो 18 महीने में तो 200 हॉस्पिटल्स तो नहीं बनाने थे, पिछले 20 साल से कितने बने, कितने वेंटिलेटर्स थे पहले से, क्या हेल्थ सिस्टम था हमारा। ये एक अभी बिल्कुल यही हाल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डाउन साइज करके इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब भी अरशद मलिक साहब कोई भी स्टेप लेता है, कोर्ट पे कोई स्टे आ जाता है, कोई मसले आ जाते हैं, क्योंकि एक स्टेटस को वहाँ भरा हुआ है। लेकिन बहरहाल आपका जो सवाल था कि PIA में बिल्कुल मुश्किलात थी, उसका सामना हम करते रहते थे, हर रोज़ करते थे, लेकिन फिर भी अगर आप PIA के टिकट्स फिर भी कंपेयर करें, अभी भी आप कंपेयर करें दूसरी एयरलाइंस के साथ, वो फिर भी बहुत बेहतर हैं। क्योंकि देखें ज़्यादातर हमारी फेरी फ्लाइट्स जा रही थी, ज़्यादातर क्या तकरीबन सारी खाली जाती थी, लोड लेके वापस आती थी, तो अब फुल लोड भी नहीं होता था। हमने 250 की कैप लगाई हुई थी, एक 400 बंदे के जहाज़ के ऊपर 250 का कैप था, तो जाहिर बात है उनको नुकसान भी हो रहा था, तो नुकसान बैलेंस करते करते टिकटिंग प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट भी करता था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब भी NCOC में मीटिंग होती थी, हम बाकी एयरलाइंस की प्राइसेस देख के PIA को फिर और नीचे करने की कोशिश करते, तो हर प्राइस हमने बीट की है बाकी एयरलाइंस से। ये एक चीज़ है, मैं नहीं कह रहा परफेक्ट है, मैं बिल्कुल अर्गज़ नहीं कह रहा, लेकिन हमने कोशिश की। लास्ट 2 क्वेश्चंस देर हो रही है। एक सर क्या कहते हैं कि आपने बताया सर 30,000 से ज़्यादा रिपैट्रिएशन में यहाँ से लोग गए, दूसरे ममालिक से भी आया, आपने बताया 7 प्रोग्राम में भी उनको शामिल किया। क्या उनका सरकारी जॉब सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कोई कोटा रखा जाएगा? क्योंकि सर उनको किसी को गोल्डन हैंडशेक का लिया गया, किसी को अर्ली लीव दे दी गई जो लोग यहाँ से गए, किसी को जो हॉलीडे पे थे उनको पीछे से रेजिग्नेशन लेटर मिल गया। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में उनका कोई कोटा मुकर्रर किया जाएगा? लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो करना मुश्किल होगा, की बात है, ऐसा कोई कोटा होता नहीं है, बनाने के लिए लॉज आपको पास करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग वापस आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लोग वापस जाना चाहते हैं उन जगहों पे, उनको इसलिए हमने ये OEC का ऐप मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ, प्लीज़ उस ऐप को आज देखें। उसमें कुछ 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, 50,000 लोगों ने, जो दिखाता है उसकी कामयाबी। तो उनको हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर डिमांड आए, उनको हम सबसे पहले उनको ही यूटिलाइज़ करें। और आज यहाँ के लेबर मिनिस्टर साहब ने भी जो इनका जो वर्चुअल सिस्टम है, यहाँ का इनका वर्चुअल लेबर सिस्टम जो है, उसमें भी कुछ 27,000 लोग हैं उसके अंदर, और उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि तो वो बेसिकली जॉबलेस होते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, और जब भी यहाँ कोई नौकरी खुलती है तो पहले उनको करते हैं कि इससे के बाहर से फिर से बंदा है, तो यहाँ भी वो अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं अपने वर्चुअल सिस्टम में। तो इंशाल्लाह अगर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहें, सब मिलकर दुआ करें कि कोरोना हमसे जान छूटे, हमारी कोरोना की कोई वैक्सीन अल्लाह करे जल्दी आ जाए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें। सर जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं 1976 से यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हम कारोबार कर रहे थे, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया, हैवी ट्रांसपोर्ट है हमारी। हम खाली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ, जैसे यहाँ से किसी TV वाले ने आपको बताया कि भाई ये हैवी ट्रांसपोर्ट का या क्रेनों वगैरह का आप हेल्प करें, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी हेल्प करें कि हम यहाँ से ये सामान लेके, मिलियंस का सामान है मेरे पास मैं 1976 से यहाँ हूँ, मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई है, करोड़ों रुपया पाकिस्तान रेमिटेंस में दी है। लेकिन आज हम आपकी हेल्प के तलबगार हैं कि हमारी हेल्प की जाए कि हम ये मशीनरी लेके पाकिस्तान चले जाएं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मशीनरी लेके अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो 200-300 आदमी का रोजगार हमारे साथ चलेगा। मैंने सर आपको अर्ज की है कि ये समरी मैंने रज़ाक दाऊद साहब को दे दी है, इन प्रिंसिपल वो इस पर एग्रीएबल है, खाली इसको अभी इंशाल्लाह हम वापस जाके मूव भी करेंगे। मैं ये एप्लीकेशन भी बना के लाया हूँ, अगर आप बेफिक्र हो जाए, अभी मशीनरी पे आपको बहुत ज़्यादा ये फरमाइएगा कि आजकल आपके हवाले से भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं टैक्स पे के हवाले से, ये बताइएगा कि आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा ओवरसीज मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करके, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उनके मसाइल को आप बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं। पाकिस्तान अभी जो पेंडेमिक से बहुत सारी जो ओवरसीज बिजनेस कम्युनिटी है वो भी मुतासर हुई है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी कोई बनाई जा रही है जिसमें उनको जो टैक्स फाइलर है उनको ले आउट या कोई रिलीफ
इंसेंटिव दे रहे हैं FDI के लिए, हम इंसेंटिव दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, हम इंसेंटिव दे रहे हैं घर खरीदने के लिए, हम इंसेंटिव दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जब वो वापस आते हैं उनको 2 साल की जो टैक्स ब्रेक होती है, जो मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। जहाँ तक आपने मेरी टैक्स की बात की, मेरी कोई पाकिस्तान में आमदनी नहीं है, तो मैं टैक्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं अवेट कर रहा हूँ, मेरी आमदनी नहीं हुई, तो उसमें खाली एक फॉर्मेलिटी है कि वो हैंडल करना है, जो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इंसेंटिव्स हम ज़रूर दे रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ, देखिए उतने मुतासर नहीं हुए कि 40% इंक्रीज आया FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% इंक्रीज आया, तो ज़ाहिरी बात है उनको किसी चीज़ से तो उनको हौसला मिला था और वो खुश थे कि इतना इंक्रीज आया। लेकिन हम उनको मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं कि इंसेंटिव देते रहें, जिनके भी कोई अच्छे आइडियाज़ हों प्लीज़ आप देते रहें। हम चाहते हैं कि हम उनको और इनवाइट करें। मुझे पता है कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा शदीद मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर अटैक आया होता, जैसे कि हम उनको चाहते ही नहीं है मुल्क में। $23 बिलियन उनके आते हैं हर साल, तकरीबन हर मुल्क में वोटिंग राइट्स भी उनकी होती हैं, ड्यूल नेशनलिटी भी एक्सेप्ट हुई हुई होती है, हर चीज़। लेकिन हमने ऐसे किया कि जैसे कि हम उनको आइसोलेट करके एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये तासुब ना पैदा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तान की मतलब ब्लड लाइन है, और उसको प्लीज़ ना डिस्टर्ब किया करें। आपको नहीं पता कि किस हालात पाकिस्तान जा सकते हैं अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान से अपना रास्ता छोड़ दें। तो प्लीज़ इस तासुब से दूर रहें, और बल्कि और इनवाइट करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, हेल्थ में हिस्सा लें, इन्वेस्टमेंट में हिस्सा लें, सोशल फैब्रिक बने पाकिस्तान। ये दुबई ऑफिस में प्रोसीजर से मैनेजर है आसिम वर्दक साहब, इनके हवाले से उनकी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे पास इनकी वीडियोस भी मौजूद है। इसकी आसिम वर्दक नाम है सर, ये नोट कर ले, आसिम वर्दक पैसेंजर सेल्स मैनेजर PA दुबई। इसने पैसेंजर सेल्स मैनेजर जी इस 4 महीने में माशाल्लाह जो काम CG साहब और इनके स्टाफ ने किया, मैंने 17-18 साल में देखा, माशाल्लाह बेहतरीन काम किया है। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो गलत है। बेहतरीन दिन रात उन्होंने काम कर, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने टिकटें भी बेची है, एयरपोर्ट भी किया है, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन अभी भी बहुत मेहनत और भी जरूरी करनी है। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। फरमाया कि अभी भी लोग बड़े हम इनके साथ हैं, ये काम जारी है। ये सिलसिले के हवाले से सर मुझे ये मैं हल्फियन कहता हूँ, मैं जो कुछ चाहता हूँ सच कहता हूँ, कभी मैंने गलत से भी कंप्लेंट किया नहीं। CG के साथ मौजूद है। इसने शारजा में 3150 के टिकट बेचे हैं। इसके अपने बंदे, मेरे एक गाँव वाला था, उसने वीडियो रिकॉर्ड की है। वो कहते हैं कि टिकट 900 दिरहम का है, लेकिन आपने 2000 देने, क्योंकि मैंने आगे PA ऑफिस में भी पेमेंट करना है। तो मेरी खुद भी बात हुई है, वो पख्तूनों का, वो कहते पख्तून ये तो नस्वारी है, ये तो बम रखते हैं, उनके से तो बात ही नहीं करते। मेरे मुझसे खुद भी उसने बात नहीं की। तो ये मेरी बात, ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, यहाँ पे 8.5 लाख पख्तून हैं, 8.5 लाख पख्तून। अगर आसिम वर्दक का आपने इलाज नहीं किया तो 8.5 लाख पख्तून PA का बाइकाट करिए इंशाल्लाह। चीजें साबित तो आप, मैं आपको वीडियो से सख्त एक्शन अगर इस पे काम नहीं हुआ तो मैं TV पे चला